So students, I hope you have understood the last video that I have sent you now. So now we are going to cover one small topic of your grammar book, that is a paragraph writing. Probably it is the most easiest and the smallest topic that is to be covered within no time. So we are starting with paragraph writing. So before moving to the paragraph writing, we have been given one activity, one passage to be read. Let us read the passage. In school, young Sunita was fascinated by aeroplanes and flying. She spent her times making small models of planes during craft lessons. When she saw planes flying, she and her brother would ride fast on bicycles, trying to see where they were headed. J.R.D. Tata, who had flown some of the first mail flights in India, was her hero. So now the answer this question: who is she here? So answer is she is Sunita. What was she fascinated by? किससे fascinated हुई थी वो? She was fascinated by aeroplanes and flying. How do we know that she was fascinated by plane? So here the answer is she spent most of her time in making small models of plane during the craft lesson. Who was her hero? Why was he her hero? Her hero was J.R.D. Tata, who had flown some of the first mail flights in India. Okay. You will see that the answer of the questions in sequence, the entire passage unveils itself in front of your eyes. Now अब हम देखते हैं कि जब हम इनके आंसर को सीक्वेंस वाइज लगाते हैं तो हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारे आगे पिक्चराइज हो जाता है. वी कॉल दिस पैसेज एज पैराग्राफ, और हम इस पैसेज को क्या बुलाते हैं? पैराग्राफ. सो नाउ व्हाट इज अ पैराग्राफ? Paragraph is a number of sentences grouped together and arranged in an order so as to have a meaningful impression on reader. Paragraph क्या होता है? Paragraph is a group of like many sentences. Not we can't say many, but a paragraph is consist of mostly 8 to 10 sentences. They are arranged in a proper order. इनको अरेंज किया जाता है प्रॉपर ऑर्डर में सो एज टू हैव अ मीनिंगफुल इम्प्रेशन, ताकि जो मीनिंगफुल इम्प्रेशन दैट मीन्स सो दैट द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड इट. सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं कि इन स्कूल डेज यंग सुनीता वॉज फैसिनेटेड बाय एरोप्लेन्स एंड फ्लाइंग. उसके बाद अगर हमने सीधा ये सेंटेंस लिख दिया, शी एंड हर ब्रदर वुड राइड फास्ट ऑन देयर बाईसाइकल्स ट्राइंग टू सी वेयर दे वर लैंडेड. उसके बाद हम लिख देते हैं दिस she spent her times making small models of planes during though these consist of the main topic only. एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं but they are not arranged properly. अगर हम ये lines properly arrange नहीं है, तो अगर lines properly arrange नहीं है then we can't call it as a paragraph. तब हम इसको paragraph नहीं बुलाएंगे. paragraph बनाने के लिए conditions का satisfy होना जरूरी है. that is that it should have 8 to 10 sentences, और जो वो 8 to 10 सेंटेंसेज होते हैं वो एक तो सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, दे शुड बी सीक्वेंस्ड, दे शुड बी अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, और थर्ड दैट दे शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक ओनली. तो पैराग्राफ की फॉर्म करने के लिए वी आर हैविंग 3 कंडीशंस. what were our 3 conditions? कि एक पैराग्राफ शुड कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 lines and the lines should be arranged properly in order and all the lines शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक ओनली. ठीक है, अगर ये हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं देन वी कॉल इट एज अ पैराग्राफ. नाउ वी शैल हैव लुक ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ. अ पैराग्राफ मस्ट हैव वन बेसिक आइडिया. एज आई हैव टोल्ड यू कि एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. ऑल द सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड रिलेटेड टू वन टॉपिक ओनली. जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं सारे के सारे सेंटेंसेज उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए. एंड द सेंटेंस विच कंटेन द बेसिक आइडिया इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. और हमारे जो पैराग्राफ में जो एक लाइन जो होती है, मेन लाइन होती है, जो हमें पूरे पैराग्राफ के बारे में बता देती है. अगर हमने वो मेन लाइन हमने पढ़ ली देन वी विल कम टू नो कि पैराग्राफ किसके बारे में है. So that line is known as topic sentence. Now just we have read the paragraph. No, in her school young Sunita was fascinated by aeroplanes. तो इस पैराग्राफ में हमारी टॉपिक सेंटेंस कौन सा है? yes, this is the first sentence only. मोस्टली पैराग्राफ में जो
टॉपिक सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस होता है. इट यूजली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ. बिगिनिंग मतलब शुरुआत में आता है, तो वो हम पहली लाइन को ही पढ़ के गैस कर सकते हैं कि पैराग्राफ किसके बारे में होने वाला है. ठीक है. द टॉपिक सेंटेंस प्रोवाइड द बेस ऑन विच टू बिल्ड द पैराग्राफ. तो टॉपिक सेंटेंस ही हमें बताता है कि पैराग्राफ किसके बारे में होना चाहिए या आगे की लाइंस क्या होंगी. ओके. सो आई हैव टोल्ड यू टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में होता है. Here also you have been given example. In school, young Sunita was fascinated by aeroplane and flying. In other sentence illustrate Sunita is fascinated with aeroplanes. Okay. Each paragraph has unity. Very often this is provided by the way sentence stand together and illustrate the main idea. पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी मीन्स सारे के सारे जो सेंटेंसेज है वो मेन जो हमारा टॉपिक है उसी पे फोकस्ड होने चाहिए. यूनिटी का पैराग्राफ में यही मतलब है कि जो सारे सेंटेंसेज हैं वो टॉपिक के बारे में ही बात करने चाहिए. टॉपिक से हटके कुछ भी नहीं होना चाहिए. द सेंटेंसेज इन पैराग्राफ आर इंटर रिलेटेड. ईच सेंटेंस लीड टू द नेक्स्ट. इट इज़ बट ऑब्वियस कि अगर हमने एक सेंटेंस लिखा है तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो पिछले सेंटेंस से रिलेटेड होगा. इट इज़ ऑब्वियस थिंग नो कि पैराग्राफ जब हम लिखते हैं, मान लो हमने दूसरा सेंटेंस लिखा तो तीसरे सेंटेंस पे जब हम आ गए देन तो इट शुड बी रिलेटेड टू द सेकंड सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस शुड बी रिलेटेड टू द फर्स्ट सेंटेंस. ओके. एंड व्हेन वी आर राइटिंग द पैराग्राफ, जब हम पैराग्राफ को राइट कर रहे होते हैं देन वी कांट स्टार्ट अ पैराग्राफ विद अ प्रोनाउन. हम किसी प्रोनाउन से पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी मच रॉन्ग. Okay, so for example this we can see the example in the first paragraph only. In school young Sunita was fascinated by aeroplanes. तो ये हमने किसका यूज़ किया? Sunita is a noun. तो I can't start the paragraph like this ना. In school she was fascinated by aeroplanes and तो pronoun का यूज़ हमने नहीं करना है beginning of the paragraph में. We always start a paragraph using a noun. ओके. हम हमेशा पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग अ नाउन. अंडरस्टूड. एंड लाइक वी हैव टू बिवेयर ऑफ अ बैड स्टार्ट. हमें हमेशा ही एक बुरी स्टार्ट लेने से बचना चाहिए. ओके. लाइक इफ़ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन अ रेनी डे, तो वी कांट स्टार्ट द पैराग्राफ लाइक आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट अ रेनी डे. नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल. let the reader assume, let the reader understand themselves कि पैराग्राफ किसके बारे में है, whether it is on a rainy day or a peacock. Okay. So while writing a paragraph you have to keep various things in the mind that we have to use the nouns and adjectives that allow reader to visualize. हमें ऐसे nouns और adjective का use करना है कि वो चीज़ें बहुत अच्छा impression छोड़ के जाएँ readers के mind में. Okay. We have to use nice verbs. Okay. And the next thing is we have to avoid repetition of the various lines. हमें कोई भी line को repeat नहीं करना है. So we can start the sentence in different ways but हम उस sentence को बार बार repeat नहीं करेंगे. We should not have too many sentences describing the same aspect. मतलब एक ही चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग लाइनें नहीं लिखनी है. We have to make them understand the thing by writing one line only. बिकॉज इट क्रिएट मोनोटोमी. मोनोटोमी मीन्स बोरियत का फील होने लग जाता है जब बार बार रिपीट होने लग जाती हैं लाइनें पैराग्राफ में. वैसे भी पैराग्राफ इज कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लाइन्स. तो 8 से 10 लाइन में भी अगर तुम 2 या 3 लाइन रिपीट कर दोगे दैट विल नॉट फेच यू एनी मार्क. ओके. डू नॉट यूज द सेंटेंस स्टार्टिंग विद द वर्ड्स लाइक बट, बिकॉज, सो, और. तो हमें ऐसे सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है जो किससे शुरू होते हैं? बट से, बिकॉज से, सो से, और से. सो दीज वर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू वर गिवन हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. नाउ वी शैल डू द प्रैक्टिस ऑफ इट. we have to come to this A part. Pick out the topic sentence in these paragraph. इस पैराग्राफ में तो फर्स्ट वन इज गिवन. इसमें हमें क्या करना है? हमने इसमें टॉपिक सेंटेंस देखना है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टॉपिक सेंटेंस. यू हैव टू रिकॉल, रिमाइंड क्या होता है टॉपिक सेंटेंस. क्या होता है? इट इज़ द मेन सेंटेंस जो हमें बताता है कि पैराग्राफ किसके बारे में है एंड इट यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे. So first line of the paragraph, 22 April is celebrated as the Earth Day, is our topic sentence because it is telling about
अर्थ डे. अब इस लाइन को पढ़ने से हमें पता चल गया कि पैराग्राफ इज अबाउट द अर्थ डे ओनली. ओके. नेक्स्ट इज सिद्धार्थ वॉज अ काइंड एंड अफेक्शनेट बॉय. तो इसमें भी जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो क्या है, टॉपिक सेंटेंस है. इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन हमारी टॉपिक सेंटेंस. फर्स्ट लाइन को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि द होल ऑफ द पैराग्राफ इज अबाउट सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के नेचर के बारे में. ओके. सो ये हमारी जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या काम करता है वो हमें बता देता है. अगर टॉपिक सेंटेंस हमारा सही है देन वी कैन कम टू नो व्हाट इज द पैराग्राफ all about. Okay, now this B part is some instruction is being given to you. They have been jumbled up, एक दूसरे के बाद लगी हुए हैं. You have to put them in correct sequence. correct sequence में डालने के बाद आपको इस पे एक पैराग्राफ लिखना है. Okay, so this is your homework, B part. And from D part you can pick any of the topic. An unforgettable outing, a day of accident, the person I admire most, what description of a market scene in your area. These 5 topics in D part you have been given. You have to pick a one and write a paragraph, nice paragraph of 8 to 10 lines and send it to me. Okay. And this B part also, इसमें तो आपको पैराग्राफ बना बनाया दिया हुआ है. You just have to put the numbers, put the lines in the sequence. Okay, and then you have to write the paragraph. Oh, how many lines have been given? There 7 lines have been already given, and you have to just arrange them in proper order, and you have to give a form of paragraph to it. Okay, so these 2 paragraphs are your homework. You have to do it in your notebook, and you have to click a picture of it, and you have to send me. Okay, so this was all about your paragraph writing. I hope you have understood it nicely.